Hello children, reflection of light is going on and this is my second video from this lesson. In first video already I explained about the light, luminous object, non-luminous object, wave nature of light and particle nature of light. In this video we will study about the next topic. So let's start. Now we can see that light exhibits the properties of both wave and particles. Means light के पास दोनों ही properties हैं, ठीक है? Light shows the properties of wave also and light shows the properties of particles also. So the modern theory of light called quantum theory of light. Is it? The modern theory of light is called quantum theory of light. Means it explains the both properties of light, dual nature of light by this theory. So now my next topic is reflection. ये क्या है? The process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. Okay, means when any rays, suppose here this is a mirror and suppose here is the point O. Okay, so when the rays AO falls on the mirror, it's reflected back, which is known as a OB. So when a beam of light AO falls on the mirror at a point O, it is sent back by the mirror in another direction, OB. Here you can see it. AO falls on the mirror and it is reflected back, OB. I will explain it by another example. Suppose if we throw a tennis ball at a wall, the ball bounces back. तुम लोगों ने किया होगा घर पे ये कई बार कि बॉल कुछ when we throw on the wall, तो वो फिर हमारे पास ही वापस आता है बाउंस होकर. Same situation applied on the light. When light falls on the surface of an object, the object sends the light back. जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल्स होती है तो वो लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट हो जाती है. जैसे कि बॉल को हमने वॉल पे थ्रो किया तो वो बाउंस होके हमारे पास ही वापस आती है. सेम थिंग. ओके, इज इट क्लियर ना? जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल्स होती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है. तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट विच फॉल्स ऑन देम. ठीक है. Some objects reflect more light, whereas other objects reflect less light. ठीक है. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और कोई कम करेगा, बट ऑल ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट लाइट. The objects having polished shining surface reflect more light than objects having unpolished dull surface. Is it clear? अगर किसी सरफेस किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है, शाइनिंग कर रहा है, तो वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा. लेकिन अगर अनपॉलिश्ड है तो वो कम लाइट को करेगा. सो एनी ऑब्जेक्ट, सपोज चेयर या फिर तुम कुछ भी, यू कैन टेक एनीथिंग. मीन्स टेबल ले लो या रूम में तुम्हारे ब्लैक बोर्ड है, बुक्स है, एनीथिंग. तो वो क्या, केप्ट इन अ रूम कैन बी सीन फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द रूम. ठीक है ना. अगर रूम में मैंने रख दिया है एक, चलो मैंने एप्पल रखा है, तो वो एप्पल हम हर एक पार्ट से देख सकते हैं. अगर हम रूम में कहीं भी खड़े हैं और वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो वी कैन सी एट द एनी पार्ट्स ऑफ द रूम. तो वाई ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स रफ सरफेस. उसका जो सरफेस है वो रफ है. Since the reflected light reaches all the parts of the room, the object can be seen from all the parts of the room. बिकॉज जो रफ सरफेस है उसकी वजह से जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, वो रूम के हर एक पार्ट्स में पहुंच रहा है. इसीलिए हम रूम में कहीं भी खड़े होके उस एप्पल को देख सकते हैं या फिर उस चेयर को या फिर उस टेबल को. वी कैन सी इट. इफ़ द सरफेस, लेकिन वहीं पे इफ़ द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्मूथ, then the light falling on it is reflected in only
वन डायरेक्शन। अगर वो रफ की जगह पे स्मूथ रहेगा तो लाइट जो है सिर्फ वन डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होगा। इज इट क्लियर? आई अगेन रिपीट इट कि इफ द सरफेस इज रफ, अगर रफ सरफेस है किसी भी ऑब्जेक्ट का, देन इट रिफ्लेक्ट द लाइट, ठीक है, इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्ट लाइट रीचेस ऑल द पार्ट्स ऑफ द रूम, या फिर जहाँ भी रहेगा वो हर एक पार्ट्स में लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। बट एट द प्लेस ऑफ रफ, इफ द surface of the object is smooth, then the light falling on it is reflected in only one direction. Okay, अभी one thing with silver metal is one of the best reflector of light. बहुत सारे मेटल्स हैं, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, इसमें सिल्वर जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। दैट्स वाई मिरर है, यू हैव सीन द मिरर, इन एवरी वन हैव अ मिरर, सभी के घर में मिरर है, तो उन्होंने देखा होगा उनका कैसा होता है, बताती हूँ। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन अ प्लेन मिरर टेक्स प्लेस एट द सिल्वर सरफेस इन इट। मिरर में दो साइड रहते हैं, ठीक है, तो वन साइड जो रहता है वो पॉलिश्ड रहता है। अभी ध्यान नहीं दिया होगा तो ध्यान दो जाके, जो तुम्हारे घर में मिरर है कैसा है। अ प्लेन मिरर इज अ थिन, पतला रहता है, फ्लैट है, एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास हैविंग अ शाइनिंग कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन वन साइड। The silver coating is protected by a red paint. But nowadays, at the place of silver, aluminium metal is also used for the polishing. Because aluminium भी क्या है, good reflector of light है, और वो लाइट वेट है एंड चीप भी है। इन कंपैरिजन टू सिल्वर, एल्युमिनियम चीपर है। ओके, मिनट, तो हमारा एल्युमिनियम क्या है, चीपर है। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेसेस। अभी जो प्लेन सरफेस है उस पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे सपोज ये प्लेन मिरर इन दिस डायग्राम सेट प्लेन मिरर इज टेकन, प्लेन मिरर लिया है। जनरली इन डायग्राम प्लेन मिरर कैसे दिखाते हैं, एक लाइन रहता है और उसके वन जो अनदर साइड रहते हैं वो पॉलिश्ड रहते हैं, और पॉलिश्ड के लिए रे रहती है। मैं नेक्स्ट डायग्राम में आई विल शो इट हाउ इज़ द प्लेन मिरर। यहाँ पे सिंपली मैंने प्लेन मिरर लिया है। अभी यहाँ पे सपोज लाइट है वो फॉल्स हो रही है इस मिरर पे, तो ये जो लाइट है विच फॉल्स ऑन द मिरर, it is known as a incident ray. Is it? Just again I repeat, this is a mirror and the light falls on the mirror. This light is known as the incident ray. ये जो लाइट फॉल्स होगी इसे हमने इंसिडेंट रे के, दिस रेज इज नोन एज अ इंसिडेंट रे। एंड हियर द पॉइंट ओ, यहाँ पे एक पॉइंट ओ है, एंड तो पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट से लाइट क्या है, विल गो बैक, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम जिस पॉइंट पे लाइट रेज आ रही है, इंसिडेंट रे आती है, बाय दिस पॉइंट लाइट विल गोज बैक एंड दिस इज नोन एज अ रिफ्लेक्टेड रेज। एंड ये यहाँ पे ये जो पॉइंट रहेगा ओ, और यहाँ पे सपोज दिस इज एन, सो ओ एन इज द नॉर्मल। ये पॉइंट को दिखाने के लिए ओ एन एक नॉर्मल है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द, यू कैन सी इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। दिस फिगर इज़ वेरी क्लियर एवरीवन, आई होप you can understand this figure. Means suppose this is a AO line, this is incident ray, means the light which falls on the mirror is known as a incident ray, and the light which falls back to the mirror is known as a reflected ray, and O1 is the normal. Now ये angle of incidence ये क्या है, तो इंसिडेंट रे मेक्स अ एंगल विथ नॉर्मल। ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है विच इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स द एंगल विथ द नॉर्मल विच इज़ नोन एज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। And angle of incidence is denoted by I, and angle of reflection is denoted by R. And one thing important, angle of incidence will be equal to angle of reflection. Is it? So suppose this is 30 degree, then this will also 30 degree. Is it?
So now we will come to the point, laws of reflection of light. ये क्या है? Very important for the light. There are two main important laws. First है the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. Okay, so learn it also and explain it. So I hope you will understood. The incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. And the second laws, the angle of reflection is always angle of incidence. Means suppose angle of reflection is 30 degree, then angle of incidence will also 30 degree. Is it clear? So today's in this video only इतना ही रहेगा. Next video I will explain the next topic. Thank you.